Okay, so Vaibhav, good morning, and let's proceed ahead with your Snap HR for NMDC. Yes, sir. Okay, so Vaibhav, introduction from your side. My name is Vaibhav Uke. I am from Nagpur, Maharashtra. My father is the retired government employee, while my mother is educated, but she preferred to take care of the family. I have one younger sister. I graduated in mechanical and post-graduation in thermal. My thesis was CFD investigation of self-priming venturi meter. I like to play gully cricket. While studying, I joined one NGO called Sikwan, in which I work as a tutorial. You worked as a tutor, huh? Yes, sir. Okay, what did you teach? Sir, trigonometry in 9th Trigonometry, standard. 9th standard. Yes, So sir. Vaibhav, why did you choose only 9th standard? Sir, because if you have to teach the graduate student, you have to go their center, which is in Gadchiroli, tribal area, and I have to done their internship of 3 months. They teach how to teach student, and offline teaching is there, and in this we have to teach student by Zoom only online. So I continue my studies and both simultaneously, so I prefer this one. Okay, so now Vaibhav, tell me one thing. From which books you are teaching this trigonometry? uh, Sir, sir, actually in book not, we are teaching by Zoom to give their quality education to them. तो Zoom की क्या limitation लगी तुम्हें पढ़ाने में? What was the limitation? Sir, because I am here and their center is in Gadchiroli, so I have to teach by Zoom only, na. हाँ, और लेकिन उसका कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज लगा तुम्हें Zoom पे पढ़ाने का? yes sir. क्या? What did you observe? सर मैं कौन यानी लड़की जो मैं पढ़ाता हूँ उनको बताऊँ, उनको समझ में आया या नहीं आया वो समझ में नहीं आता है. फीडबैक पता नहीं चलता उनका. यस सर. और अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स वो भी नहीं पता चलता, बट आफ्टर दैट दे आस्क मी, सर ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम, सो आई कैन सॉल्व एज मच एज आई कैन. अच्छा, मेरे को ये बताओ, गली क्रिकेट कहाँ खेलते हो आजकल? सर स्ट्रीट पर. तो फिर कोविड के टाइम पे कैसे खेलते हो, मास्क लगा के? यस सर. तो डेंजरस नहीं है वो? सर है, पर जरा एंजॉयमेंट के लिए खेलते हैं हम हमारे कॉलोनी में. ओके. एंड ये पीजी आपने थर्मल में किया है, कब किया? सर 2015 to 2017. ओके, तो आप मतलब 15 के ग्रेजुएट हो? यस सर. उसके बाद आपने पीजी किया? यस सर. एंड 17 के बाद? सर प्रिपरेशन कर. तो मतलब 4 साल लगा दी तुमने प्रिपरेशन में? यस सर, आई डोंट गेट एनीथिंग. तो 4 साल में फिर आपको कभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी एंड ऑल? नो सर, actually I prefer government, so that's why I want to join the government sector. अच्छा, why you are interested Vaibhav, only in government sector or public sector? Sir, actually both are having same, but I prefer government because the government policy is good as compared to private, and career growth is more in government. What do you mean by career growth? Career growth means you have to more chance to upside the level, but in private sector you have to, there is lot of सर उसमें प्राइवेट में तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है यार, मतलब अगर आप मेहनत करोगे यू कैन ग्रो मोर इन प्राइवेट. नो सर, आई डोंट थिंक दैट. गवर्नमेंट में तो टाइम बाउंड है प्रमोशन. यस आप बहुत मेहनत करोगे, मेहनत नहीं करोगे, 4 साल बाद प्रमोशन होना है तो 4 साल के बाद ही होगा. प्राइवेट में ऐसा नहीं है. प्राइवेट में आप बहुत अच्छा काम करोगे तो दूसरी जॉब में भी जा सकते हो, आपको ग्रोथ मिल सकता है, राइट? Sir, in private there is no stability of the job, so if I want to stay on the one company and grow, then you have to stay on the one company. अच्छा वैभव, मेरे को ऐसा कोई अपना पर्सनालिटी ट्रेट बताओ which makes you suitable for NMDC. Sir, actually I am done my MTech. In my MTech I learn an analytical solution,
many organization face many engineering problem, so that problem can only solve by the analytical. So in future, if such condition comes, so my analytical problem will help organization. Don't you think you are overqualified for this job, being MTech? Yes, sir. तो फिर why should we hire you if you are overqualified? क्योंकि आप में तो फ्रस्ट्रेशन रहेगा बीटेक वाले लड़कों के साथ काम करके, आपको हमेशा लगेगा मैं तो एमटेक हूँ. Sir, that's not problem. In my childhood, I used to work. If I get the opportunity in mining sector, I can definitely grab it because my area, my native place is all surrounded by the mining sector. So from childhood, it's my dream to work as a mining sector. अच्छा वैभव, एनएमडीसी कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? Sir, Ministry of Steel. Who is the Minister of Steel? रामचरण प्रसाद सिंह. कब बने ये? सर अभी रिसेंटली बने. Okay वैभव, anything you want to ask us? Sir, how we attend the 67 milliton of iron produced from 35 milliton of iron? अगर उनको इसका आंसर ही पता ना हो फिर टेढ़ा क्वेश्चन तो नहीं पूछ लिया तुमने. क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछना है जो, ये टेक्निकल क्वेश्चन हो गया ना वैभव. यस सर. क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के बारे में पूछो, एनएमडीसी के बारे में क्वेश्चन पूछो, लेकिन बहुत टेक्निकली डेप्थ वाला क्वेश्चन नहीं पूछना होना चाहिए. ओके सर. टेक्निकल डेप्थ वाला क्वेश्चन होगा तो पंगा पड़ जाएगा. ओके सर. अगर उनको पता नहीं होगा तो एम्बैरेसिंग हो जाएगा काम. यस सर. अब देख इंट्रोडक्शन में एक तो पहले गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में तेरे को डिफरेंस नहीं कर रहा है. बार बार गवर्नमेंट सेक्टर बोल रहा है, ये पब्लिक सेक्टर है. अगर बार बार गवर्नमेंट सेक्टर बोलेगा ना तो वो उसको गलत ले लेंगे. वो गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में बड़ा झगड़ा चलता है. यस सर. गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है वो 100% गवर्नमेंट होती है, जो कभी प्राइवेटाइज नहीं हो सकती. पब्लिक सेक्टर ऐसा है जो गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है उसमें, लेकिन 100% गवर्नमेंट नहीं होता पब्लिक सेक्टर. यस सर. एंड इट कैन बी प्राइवेटाइज्ड. यस So सर. specifically say public sector, don't say government sector. ओके सर. तो गवर्नमेंट सेक्टर वर्ड निकाल दे, पब्लिक सेक्टर Yes. बोल, पब्लिक प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट, समथिंग लाइक दैट. ओके. एंड आप अपने इंट्रोडक्शन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बोल सकते हो कि सर आई वांट टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन एनएमडीसी बिकॉज द एरिया फ्रॉम व्हिच आई बिलोंग that is surrounded by mining areas, ओके सर. and I've seen the mining work and I'm genuinely interested for this particular profile. तो वो इंट्रोडक्शन में कहीं ना कहीं उस लाइन को जोड़. ओके सर. फिर मैंने तेरे से पूछा एमटेक का क्या फायदा होगा, तो तूने रटा रटाया आंसर बोला और पकड़ा गया. एनालिटिकल वगैरह क्या बोल रहा था वो लग नहीं रहा था. सिंपली इस तरीके से इसको इंटरनलाइज कर कि सर आई थिंक व्हेन आई ग्रेजुएटेड आफ्टर बीटेक एंड व्हेन आई डिड माय एमटेक देयर वाज अ बिग डिफरेंस. I learned many things in MTech other than obviously curriculum. I learned many things in MTech. How to work in a discipline, how to work in a team, how to go and do some kind of project work. So I learned many things, sir. And I think after MTech I am better suitable for any job. ओके सर. भाई MTech में मैंने कई चीजें सीखी जो बीटेक में नहीं सीखी थी. टीम में काम करना, प्रेशर में काम करना, डिसिप्लिन में काम करना. इसको पहले सोच ले, बोल अपने दिमाग में, तब बोल. अदरवाइज क्या होगा, जैसे मैंने तेरे को बोला एनालिटिकल, मैंने कुछ और बोला था और तूने कुछ और रटा हुआ है और रटा हुआ आंसर लग रहा है वो एनालिटिकल, उसका उनको कोई मतलब नहीं है. राइट. ओके सर. यस सर. एंड एनजीओ के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, कौन से एनजीओ में काम कर रहे हो. ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है. हाँ. और ऑनलाइन एजुकेशन से जून से तुम्हें क्या क्या ट्रबल आ रहा है. तुमने आंसर सही किए. सर बच्चों का टेंशन स्पैन नहीं होता, हमें ये पता नहीं चलता उनको समझ आया कि नहीं समझ आया. कई बार बच्चे अपना जूम ऑन करके वो चले जाते हैं और होते नहीं है. जब मैं उनसे, फिर इसका सोल्यूशन क्या है सर, इसके लिए हमें बार बार हर 5-6 मिनट के बाद आर्बिट्रेरली किसी बच्चे का नाम लेके पूछना पड़ता है कि आपको समझ आया कि, ये करना पड़ता है सर. यस सर. हमें दिखता तो है नहीं बच्चा, तो हमें समझना पड़ता है वैसे. यस सर. तो ऐसे आप उसको करो. एंड एक बार जय सर के साथ CFD का लगा लेना, स्नैप लगा यस लेना. सर. राइट यस वैभव. सर. एंड Yes, थोड़ा sir. इस लाइन पे आप अपना इंट्रोडक्शन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ और इंट्रोडक्शन में वो लाइन बोलो कि मैं क्यों इंटरेस्टेड हूँ एनएमडीसी के लिए, यस क्योंकि सर. मैं उस एरिया से. यस सर. डन. एंड मे बी नेक्स्ट क्वेश्चन वो उसी एरिया से रिलेटेड पूछेंगे. यस सर. डन वैभव. यस सर. चलो प्रिपेयर वेल नाउ ऑन दीज लाइंस.